یہ کہانی ایک بڑے راہب کی کہانی ہے جو گلابی رخساروں اور بڑی سی توند والا شخص تھا۔ اس کی خانقاہ کے ارد گرد بہت سارے کھیت تھے جہاں خوب فصلیں اگتی تھیں۔ وہ سارا دن اپنے صحن میں بیٹھا ٹیکس وصول کیا کرتا۔ سچ پوچھو تو اسے کوئی پریشانی چھو کر نہ گزری تھی۔ وہ اس قدر کاہل تھا کہ اپنا منہ بھی اس وقت کھولتا جب اسے کوئی چیز کھانی ہوتی۔ یوں لگتا تھا کہ وہ بہت عالم فاضل ہے، اور یہ بات صحیح بھی تھی۔ بڑا راہب کم و بیش اپنا سارا وقت سونے، پینے اور کھانے میں صرف کرتا۔ چنانچہ وہ دن بدن مزید موٹا اور کاہل ہوتا جا رہا تھا۔ پھر ایک غیر معمولی واقعہ پیش آیا جس نے اس کی مطمئن زندگی میں ہلچل سی مچا دی۔ وہ یہ کہ شہنشاہ کو اچانک اس کا خیال آیا۔ شہنشاہ جب محل میں فارغ بیٹھا ہوتا تو وقت گزاری کے طریقے ڈھونڈتا رہتا۔ ایک دن نہ جانے اسے کیا سوچی کہ اس نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ وہ بڑے راہب کو محل میں بلا لائیں۔ جب وہ سامنے آیا تو شہنشاہ نے اسے مخاطب کیا، او میرے مقدس راہب، چونکہ آپ بہت قابل آدمی ہیں اور آپ کو فرصت بھی میسر ہے، اس لیے میں نے آپ کو چند سوالات کے جوابات دینے کے لیے یہاں بلایا ہے۔ عالم پناہ، اگر آپ اپنی بے مثال ذہانت کے باوجود ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکتے تو مجھے خدشہ ہے میں بھی آپ کی کوئی مدد نہ کر سکوں گا۔ راہب نے لرزتی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ اس کے لیے یہ خیال ہی بڑا پریشان کن تھا کہ شہنشاہ کی طلبی کا مقصد اسے کوئی اچھا عہدہ یا ترقی دینا نہیں۔ سنو میرے راہب، شہنشاہ نے کہا، تمہیں اس قدر انکساری سے کام نہیں لینا چاہیے۔ ہر کوئی کہتا ہے کہ تم اتنے ذہین اور دانش مند ہو کہ دنیا میں کوئی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اپنی عقل کو کام میں لاؤ اور یہ 3 مشکل سوال حل کر دو۔ شہنشاہ نے کچھ دیر سانس لیا اور پھر کہنے لگا، سوال نمبر 1، سمندر کتنا گہرا ہے؟ سوال نمبر 2، مجھے گھوڑے پر سوار ہو کر دنیا کا چکر لگانے میں کتنا عرصہ لگے گا؟ اور سوال نمبر 3، زمین اور آسمان کا درمیانی فاصلہ کتنا ہے؟ شہنشاہ کے سوالات سن کر راہب اتنا پریشان ہوا کہ اس کے ماتھے سے پسینہ ٹپکنے لگا۔ وہ ان سوالات کا جواب کیسے دیتا؟ واقعتاً اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ ہچکچاتے ہوئے بولا، مجھے اگر عالم پناہ مناسب سمجھے تو کچھ غور اور سوچنے کے لیے مہلت چاہیے۔ شہنشاہ نے کہا، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، میں تمہیں 3 ہفتے کی مہلت دیتا ہوں۔ اس کے بعد تم بالکل درست جوابات تلاش کر کے میری خدمت میں پیش ہو جانا۔ اس سلسلے میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ تم میرے سب سے بڑے عالم ہو۔ بصورت دیگر تمہیں اپنا بوریا بستر سمیٹ کر خانقاہ سے جانا پڑے گا۔ تمہیں صرف ایک چھوٹے سے گدھے پر اس کی دم کی جانب منہ کر کے بیٹھنے کی اجازت ہوگی۔ تمہیں یوں ہی پورے ملک میں گھومنا ہوگا تاکہ لوگوں کو ان افراد کا حشر معلوم ہو سکے جو خود کو عالم ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ راہب محل سے رخصت ہوا تو نہ صرف بہت دل شکستہ تھا بلکہ خوف زدہ اور گھبرایا ہوا تھا۔ اسے خود بھی علم نہ ہوا کہ وہ واپس کس طرح خانقاہ میں پہنچا۔ وہاں دیکھا کہ میز پر لذیذ کھانا چنا ہوا ہے، لیکن اس نے ایک نوالا تک نہ کھایا اور سیدھا اپنی خوابگاہ میں چلا گیا۔ بستر پر لیٹ کر وہ یوں روتا کر رہا جیسے ابھی اپنے خالق سے جا ملنے والا ہو۔ وہ رات بھر کروٹیں بدلتا رہا اور اس کی پلک ایک لمحے کے لیے بھی نہ جھپکی۔ اس کا الجھا ذہن شہنشاہ کی بتائی ہوئی پہیلیاں حل کرنے کا کوئی طریقہ نہ ڈھونڈ سکا۔ اگلے 3 ہفتوں میں دنیا بھر میں کوئی شخص اتنا پریشان نہ رہا ہوگا جتنا کہ وہ راہب تھا۔ وہ چڑچڑا ہو گیا، اس کی بھوک اڑ گئی اور گال بھی پچک گئے۔ وہ کمزور ہو گیا۔ اس نے سوالات کے جوابات تلاش کرنے کی کوشش میں بارہا اپنا دماغ لڑایا، مگر جتنا سوچتا اتنا ہی جی الجھتا جاتا۔ اس نے اپنے راہبوں سے مدد مانگی کہ شاید وہ کوئی حل تلاش کر سکیں۔ بدقسمتی سے وہ سوائے منمنانے کے اور کچھ نہ کر سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ راہب کی حیثیت سے وہ صرف اپنے مذہب کی تعلیمات سے واقف ہیں، ان کے لیے باہر جا کر فطرت کے رازوں کا مطالعہ کرنا ممکن نہیں۔ مایوسی کے عالم میں راہب کے پاس اس منحوس دن کا انتظار کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ رہا جب اسے شہنشاہ کے سامنے حاضر ہو کر یہ اعتراف کرنا تھا کہ وہ جاہل بلکہ ایک بیوقوف شخص ہے۔ دن گزرتے رہے اور راہب کمزور ہوتا چلا گیا۔ اب وہ ایسے کام کر سکتا تھا جو وہ پہلے کرنے کے قابل نہ تھا، مثلا چلنا پھرنا اور ہوا خوری کے لیے نکلنا۔ اب وہ ایسی سنسان جگہوں پر جا کے چھپ سکتا تھا جہاں اسے کوئی نہ دیکھ سکے۔ بالآخر مقررہ وقت آ پہنچا اور اس کی تمام تدابیر بیکار ثابت ہوئیں۔ شہنشاہ سے ملاقات کے دن سے ایک شام پہلے وہ ٹہلتا ہوا ایک سنسان جگہ نکل گیا۔ ماتھے پر پریشانی کی شکلیں لیے وہ نیچے دیکھتا ہوا چل رہا تھا کہ کسی سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ وہ ایک مزارع تھا جو کاشت کا موسم ختم ہونے کے بعد گندم پیسنے خانقاہ میں آیا کرتا تھا۔ جب کاشتکار نے دیکھا کہ اس کے سامنے صدر راہب کھڑا ہے تو وہ جلدی سے اس کے لیے راستہ چھوڑ کر ہٹنے لگا،
लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर उसने अपने आका की मिजाज पुरसी नहीं की तो वो नाराज हो जाएगा। लिहाजा वो कहने लगा, आका, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप इतने परेशान क्यों हैं? लगता है आप पर किसी का साया आ गया है। सदर रहब ने ठंडी आह भरकर कहा, तुम सही कहते हो, शायद तुम्हारी मुझसे ये आखिरी मुलाकात हो। कल मुझे शहनशाह के 3 सवालात, 3 पहेलियों का जवाब देने महल जाना है। और फिर उसने सारी बात बड़ी बेतकल्लुफी से मज़ारे को बता दी। हालांकि आम हालात में शायद वो उसके सलाम का सीधे मुंह जवाब तक न देता। मज़ारे ने आहिस्ता से अपना सर थपथपाते हुए और उस मामले पर कुछ सोचो विचार करने के बाद अपने आका की तरफ देखा। किस कदर अफसोसनाक मंजर था। सदर रहब दिन में 3 बार अमूमन डट कर खाना खाया करता और उसके पास सोच विचार करने के अलावा सिर्फ यही काम था कि वो अपने मजदूरों से कम मुआवजे पर किस तरह ज्यादा से ज्यादा काम कराए। वो मज़ारों और मजदूरों को हमेशा अहमक समझता था और ये किस कदर गैर मुतवक्को बात थी कि अब वो खुद परेशानियों से दो चार था। यकीनन ये बात मज़ारे के लिए खुशी का बायस थी। उसके दिल में आका का खौफ कम होने लगा। क्या देख रहे हो? मज़ारे को अपनी तरफ देखता पाकर सदर रहब ने बुलंद आवाज में पूछा, क्या तुम मुझे नहीं जानते? मैं आपको अच्छी तरह जानता हूं आका, मज़ारे ने जवाब दिया, लेकिन मुझे हैरत हो रही है कि आप जैसा काबिल शख्स इन आसान से सवालात का जवाब नहीं दे सकता। सदर रहब ने हैरत से पूछा, तो गोया तुम जवाब दे सकते हो। मज़ारे ने जवाब में कहा, हम मजदूर दिन भर 2 वक्ती रोटी के लिए परेशान रहते हैं। अगर तेज फहमी का मुजाहरा ना करें तो फिर हमें अगले जहान में खुदा से मिलने के लिए तैयार रहना चाहिए। सदर रहब ने उसकी बात काटते हुए कहा, नहीं, तुम खुदा के हजूर पेश नहीं हो सकते क्योंकि तुम्हारा कोई मजहब नहीं। चलिए तो फिर मेरा शैतान ही से आमना सामना होगा। बाहर सूरत अभी तो मैं जी रहा हूं, अगर शैतान ने मुझे पकड़ लिया होता तो मैं आपके लिए आटा कैसे पीसता मालिक। ये कहते ही मज़ारे मुड़ा और वहां से चल दिया। सदर रहब ने कभी सोचा भी न था कि यह शख्स इतना ज़हीन है और उसे तुमदो तेज लहजे में जवाब देगा। अब उसके पास मज़ारे से मदद तलब करने के सिवा कोई चारा न था। चुनाचे वो उसके पीछे पुकारते हुए लपका, ठहरो ठहरो, मुझे कुछ कहना है। मज़ारे ने रुकने से पहले सर घुमाकर पूछा, क्या बात है मालिक? रहब कहने लगा, अगर तुमने मेरे 3 सवालात के सही जवाबात बता दिए तो मैं तुम्हें बड़ा इनाम दूंगा। कम से कम मैं तुमसे आइंदा आटा पीसने के लिए कभी नहीं कहूंगा। मज़ारे ने दिल में सोचा कि यह शख्स परेशान होने के बावजूद अपनी ताकत और घमंड का मुजाहरा कर रहा है। इसके इनाम की किसे परवाह है? लेकिन ये हम सबको अहमक समझता और हुक्म चलाता फिरता है। इसलिए मैं इस मौका से फायदा उठाते हुए इसे ये जता सकता हूं कि हम मजदूर अहमक नहीं होते। मज़ारे ने कहा, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए, लेकिन मैं सवालात के जवाबात हल करने की कोशिश जरूर करूंगा क्योंकि आप उनका जवाब नहीं दे सकते। सदर रहब ने पूछा, वाकई क्या तुम ऐसा कर सकते हो? लेकिन रहब का चेहरा बता रहा था कि उसे ज्यादा उम्मीद नहीं थी। मज़ारे ने जवाब में कहा, क्या आपके ख्याल में मैं सच नहीं बोल रहा? मैंने जिंदगी भर कभी झूठ नहीं बोला मालिक। मैं कभी मदरसे नहीं गया और मुझे मालूम नहीं कि पढ़ाई किसे कहते हैं, लेकिन मैं शायद अपने तजुर्बे के जरिए इन सवालात के जवाबात दे सकूं जो आपको किताबों में नहीं मिल सका। इन पहेलियों के सच्चे सच्चे जवाब दे सकूं। तो तुम जानते हो गोया कि इन सवालों का जवाब क्या है? मज़ारे ने सर हिला दिया, जी हाँ, लेकिन अब आपको मेरा हुक्म मानना होगा। मज़ारे ने कहा, इसके बगैर ये मसला हल नहीं हो सकता। सदर रहब की परेशानी की रगें उभर आईं। वो नाराजगी से बोला, तुम्हारा हुक्म मानूं? लेकिन यूं तो तुम मेरे आका बन जाओगे। क्या मैं तकदीर को बदल डालूं? नहीं नहीं। लेकिन जब उसे अगले दिन का ख्याल आया तो उसका रंग उड़ गया। अगला दिन उसके लिए क़यामत के दिन की तरह था। कल उसे गधे पर सवार करके उसकी दुम की जानिब मुंह करके गलियों में सवारी करना होगी। तब तकदीर बदल जाएगी, लोग उस पर हंसेंगे और उसका सर हमेशा के लिए झुक जाएगा। तकदीर तो शायद नहीं बदल सकती, लेकिन वो तो बदल सकता है। बड़े रहब ने बेचारगी के आलम में कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी बात, तुम्हारा हुक्म मानूंगा। और उसके साथ ही इजाफा किया, लेकिन सिर्फ एक मरतबा, सिर्फ एक ही मरतबा मैं तुम्हारा हुक्म मानूंगा। मज़ारे ने कहा, ठीक है, सिर्फ इस मरतबा। कल आप घर पर रहें और मैं शहनशाह से मिलने जाऊंगा। बड़ा रहब हैरत से चीख उठा, मेरी जगह तुम चाहोगे? फिर अपनी तमाम तर परेशानियों के बावजूद वो खुद को पुरसकून महसूस करने लगा। मज़ारे ने कहा, क्यों नहीं, मुझे अपना चोगा और टोपी दे दें। शहनशाह से मुलाकात के लिए मैं ये चीज़ें पहन जाऊंगा। बस देखते जाइए, हो सकता है मैं आपका मसला हल कर दूं। मज़ारे का लहजा इतना पुरएतमाद था कि सदर रहब, जो यूं भी तबाही के किनारे पर खड़ा था, उस पर भरोसा किए बगैर न रह सका। अगले रोज मज़ारे ने अपनी दाढ़ी मोड़ दी और अपने मालिक का चोगा और टोपी पहनकर सदर रहब का रूप धार लिया। चेहरा छुपाने के लिए उसने टोपी नीचे झुकाई और महल की तरफ चल पड़ा। शहनशाह ने उसे देखा तो देखते ही बोला, तुम सही वक्त पर पहुंचे हो मेरे रहब। शहनशाह, जो बड़े वकार के साथ तख्त पर बैठा था,
उसके इर्द गिर्द शहजादे, नवाब और वज़रा विराजमान थे। देखो यहाँ कितने अहम लोग तुम्हारी गैर मामूली जहानत की दाद देने के लिए जमा हैं। तो आओ हम पहले सवाल से शुरू करते हैं। शहंशाह ने कहा, यह बताओ कि समंदर कितना गहरा है। मज़ारे ने अपने मालिक की आवाज की नकल उतारते हुए कहा, यह तो बहुत आसान सवाल है। समंदर की गहराई उस पत्थर से मालूम की जाती है जो उसमें फेंका जाए। शहंशाह ने कहा, हाँ, तुम्हारा जवाब दुरुस्त है। और यह सोचकर उसकी मुस्कुराहट गहरी हो गई कि पानी में फेंका जाने वाला पत्थर उसी वक्त रुकता है जब समंदर की तह तक पहुंच जाए। अब शहंशाह ने कहा, बराए मेहरबानी दूसरे सवाल का जवाब दो। घोड़े पर सवार होकर दुनिया का चक्कर लगाने में मुझे कितना वक्त लगेगा? मज़ारे ने कहा, इसका इन्हिसार आपके घोड़े की रफ्तार पर है। अगर आलम पनाह तलुए आफ्ताब के वक्त सफर करें और घोड़ा जमीन की रफ्तार से दौड़े तो दुनिया का सफर करने के लिए आपको 24 घंटे दरकार होंगे। शहंशाह ने कहा, बहुत खूब, मेरे ख्याल में तुम्हारा जवाब सही है, क्योंकि मैं इससे बेहतर जवाब नहीं ढूंढ सकता। तो अब आखिरी सवाल, आसमान और जमीन का दरमियानी फासला कितना है? इस मर्तबा ठीक ठीक जवाब देना, और अगर या तब जैसे लफ्ज इस्तेमाल तुमने किए तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मज़ारे ने जवाब दिया, आसमान और जमीन का दरमियानी फासला 40,106 मील 22 गज 1 फुट और 7 इंच है। शहंशाह खुशी से पुकार उठा, शानदार, तुमने ये हिसाब कैसे लगा लिया? मज़ारे ने पूछा, आलम पनाह, क्या आप खुद पैमाइश करना चाहते हैं? अगर आपका नतीजा मेरी बात के बरक्स निकले तो मेरी गर्दन हाजिर है। बेशक मेरी गर्दन अपनी तलवार से उड़ा दीजिएगा। शहंशाह की हंसी छूट गई। कुछ देर बाद संभल कर बोला, तुमने अपनी तरबियत बहुत अच्छी तरह की है और तुम्हारा इल्म मेरी तवक्को से ज्यादा वसी है। मुझे यकीन है कि तुम अपनी जहानत की बदौलत ये अंदाजा लगा सकते हो कि मैं इस वक्त क्या सोच रहा हूँ। ईमानदारी से बताओ, मैं इस वक्त क्या सोच रहा हूँ, और फिर तुम जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। मज़ारे ने कहा, जी मुझे अच्छी तरह मालूम है कि आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन जहां पना मैं सच्ची बात नहीं बता सकता। शहंशाह ने नाराज होते हुए पूछा, क्यों भाई? वहां बैठे हुए शहजादे, नवाब और वज़रा भी परेशान हो गए, क्योंकि वो ये समझे कि बड़ा राहब दर पर्दा ये कहना चाह रहा है कि शहंशाह बड़ा बेईमान है। मज़ारा कहने लगा, अगर आपका इसरार है तो मैं आपको सच्ची बात बताए देता हूँ, मैं आपके हुक्म की तामील करता हूँ। मज़ारे ने कहा, आलम पनाह ये सोच रहे हैं कि मेरा सदर राहब वाकई आलिम व फाजिल है जो हर तरह के सवालों का जवाब दे सकता है, लेकिन आलम पनाह आप गलती पर हैं। मैं सदर राहब नहीं हूँ, बल्कि उनकी खानकाह का एक मामूली मुलाजिम हूँ। ये कहते ही मज़ारे ने अपनी टोपी सर से खींच ली और चोगा उतार दिया। फिर उसने अपना सर नीचे झुका लिया ताकि शहंशाह उसके बिन बुलाए चले आने और गुफ्तगू करने पर उसे माफ कर सके। हैरत के मारे शहंशाह देर तक एक भी लफ्ज ना कह पाया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना बेहतर होगा, नाराज हो या मज़ारे को उसके मजाक को सराहे जो उससे पहले कभी किसी ने नहीं किया। वो इस नतीजे पर पहुंचा कि उसे नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि मज़ारे ने जो कहा था वो सही कहा था, लिहाजा उसकी नाराजगी का कोई जवाज न था। शहजादों, नवाबों और वज़रा को भी इस हकीकत का इतराफ करना पड़ा। खूब, तो लगता यूं है कि तुम मेरे सदर राहबों और पुरोहितों से ज्यादा ज़हीन हो। शहंशाह ने कहा, चुनाचे अब मैं तुम्हारे मोटे मालिक के बजाय तुम्हें अपना सदर राहब मुकर्रर करता हूँ। अब वो आटा पीसने का काम करेगा। मज़ारा शहंशाह के सामने झुका और मुस्कुराते हुए बोला, शुक्रिया आलम पनाह, लेकिन मैं आपका इनाम कबूल नहीं कर सकता। शहंशाह ने पूछा, क्यों भाई? ये सुनकर उसे और वहां मौजूद सारे लोगों को भी बहुत हैरत हुई थी। तुम बहुत ज़हीन हो, फिर इतना अच्छा ओहदा कबूल करने से क्यों इनकार कर रहे हो? मज़ारे ने कहा, अगर मैं सदर राहब होता तो अपने आका की तरह अहमक होता। एक लम्हे तक तो शहंशाह और उसके साथियों की समझ में ही ना आया कि उसकी बात का मतलब क्या है। वो मायूसी के साथ एक दूसरे को देखने लगे। इसी दौरान वो चुपके से महल से बाहर निकल गया। जब शहंशाह और उसके आदमियों के हवास बहाल हुए तो उन्हें दूर जाते हुए मज़ारे की पुश्त दिखाई दी। वजीरों में से एक ने शहंशाह की तरफ देखकर कहा, उसे जाने दीजिए आलम पनाह, हमारा सदर राहब आपसे वाबस्ता है। गो वो अहमक है, लेकिन उसने अनाज और टैक्स की रकम इकट्ठी करने में कभी कोताही नहीं की। शहंशाह को सर हिलाकर तस्लीम करना पड़ा कि वाकई उसे ज़हीन राहब की नहीं, एक जालिम, अहमक और सख्त गिर राहब की जरूरत थी जो उसे टैक्स और अनाज वक्त पर पहुंचाता रहे। यूं सदर राहब का ओहदा बरकरार रहा और मज़ारा दोबारा आटा पीसने पर लग गया।